So yesterday we have seen how to create a new task with the help of the workflow. Moreover, we have seen what exactly is the task object and the event object. One thing which was left yesterday to discuss was what exactly is the who ID and what ID. And let me tell you, this one is a most important interview question as far as it is concerned with the task creation of the task with the help of workflows. So they probably ask you this every time you could see this question, who ID and what ID. So let me first of all discuss what exactly is whoid and whatid. See, we created yesterday we created one workflow. I mean, I have shown you few examples that with the help of schema builder, with the help of schema builder, I've showed you these things that whatever the object we have created, all these objects. At the time of creation, there was a checkbox called as allow activities. There was a checkbox called as allow activities. And then whenever we click that checkbox, allow activity, so that particular object is going to be get associated with task and event. Let me have an example of any one of this. Although it is, I mean, it is actually being interfaced with, it is actually being related with these two. Let me select this and just a second. Let me select any one of them. Select the task object. So now I can see that this customer object is related to what? This customer object is related to the task object. Now, just by looking into this, just by looking into this diagram, can you tell me which one among these two objects, customer and the task, which one among these two objects is the parent and which one is the child? Yeah. Can anyone tell me this? The task is the child and Sir, customer. Go ahead. Yes. Yes, Shweta, you are you are saying something. So your task is the child object and your customer is the parent object. Fine. Okay. And let me have another object over here. So I have this as a case object that we have. Now again, which one is the parent? Which one is the child? Yes, which one is the parent? Which one is the child? Case is the parent and task is the child. Okay, understood. Let me try with some another object. Let's go with the account. Yes, now tell me. Now tell me, which one is the parent? Which one is the child? Again, account is the parent and task is the child. Account is the parent and the task is the child. Okay. Child. And go back, clear this account. Let me try with few of the custom objects like let's go with the hiring manager. So I can see that hiring manager is the parent, task is the child. Let me try with the position object. So let me try with the position. I can again see that position is the parent, task is the child. Now this is the same story with event also. Okay, let me show you that also. Let me show you that also. I mean, I'm bringing you guys on a conclusion actually for this. What is the I'm telling you all this because I want you guys to have one conclusion in your mind. Okay. So now let me compare this with the help of event object. Again, I can see that position is the parent, event is the child. Okay. Let me try it with some another object, probably with candidate object. Again, I can see the same thing. Candidate is the parent and event is the child object. So now we understood one thing. First of all, what we have understood is that every time whenever object is get in, on the object when activities is enabled, the feature of the activity is actually enabled on this object. I mean, at the time of creation of this object, at the time of creation of any object, if we click that checkbox activities, if we click that checkbox activity, then it actually means that on this object, we have enabled activities. We have enabled activities as a result of this. As a result of these consequences, okay, we enable the activities. So there are a few consequences of enabling the activities now.
as a one consequence, I mean, as a result of this, this particular object is going to be get associated with task and event. So whenever a relationship has been created with this object, with the task and event, we have, we identify one thing over here is that this object candidate is going to be the parent, and this event object, and or rather the task object, they are the child object. These are the child object. So every time with every object we tested, we trial and tested it with few more objects, few of the standard, few of the custom object. But then every time we see the same thing, every time we come up with the same conclusion over here is that your object, whatever, it could be a standard, it could be a custom. Your object is actually a parent, and always your event and task, these objects are what? These are your child object. So whenever there is a relationship between task, event, and any another object, so for sure that object is actually a parent object. If it is an account, account is a parent. If it is a candidate, candidate is a parent. And your event object and your task object, these are what? These are the child objects. These are the child objects. Everywhere they were the child object. Every time they were the child objects. That is what our conclusion is. That is what our conclusion is. Now let me ask you one thing. See, we have described the relationship also. We have understood. I mean, we have learned the relationship also. Now, please tell me, what are the steps of creating relationship between two objects? Yes. What are the relationship between? What are the steps of creating the relationship whenever we want to create the relationship between two objects? How could we create that? Yes. Sir, first we have to identify the parent and child object, and then we have to go to the child object and create the relationship field. Okay, that's great, Humeda. So we first need to identify among the two objects which one is the parent, which one is the child. That's step number one. So in every cases, we just identified the task object, or rather the event object is the child object. Okay, that is what we have understood right now. So step number one completed. Now come to step number two. What is that? We must go to the child object. We must go to the child object. And inside the child object, we should create a relationship field. So relationship field or the reference field is always there inside the child object. If I want to find the relationship field, I shouldn't go to the parent. I know where in the parent I could find it. If you want to find a relationship field, if you want to find a relationship field, if you want to find a relationship field, you must go to the child. You must go to the child, and inside the child you should find. Inside the child you should find what is the field. What is that field? So let me show you something from here. I can also show you some view option. Let me display the element tables. Let's see what I can show you. What are the elements? Yes. See, can you see that inside this event object? Inside this is what? It's an event object. Can you see inside event? Inside event, there are two fields, what and who. I can even show you that from here also. Well, यहाँ पे दिख तो रहा है कि ना inside the event there's two fields, what and who. This is called as whoid. This is called as whatid. Let me show you that from here also. Okay. When I go to the customize, setup, build, and customize inside the activities, because these are the features of activities. I need to find out the task and event. So I must go to the activity. So inside the activity, there's a tab called as task fields. And there's a there's a link called as event fields. Let me open both of these. So if I see the task object fields, these are the fields of the task object. These are the standard fields. Below this, it could be in a custom field. There's no custom field. Okay. But you can create the task custom fields from here. There's one option over here to create the task custom fields. Activity custom fields. Now, with the help of this, you can create the custom fields inside the task object and the event object. Okay. By default, these two doesn't have any, task doesn't have any custom fields. Event also doesn't have any custom field. But that doesn't mean you cannot create it. Yes, we can create it with the help of activity custom fields. Write it down, write it down. This one is an interview question. Write it down. Write it down. Question is, I could ask him 2 to 3 ways I could ask this. Did task object and the event object, task object and the event object have custom fields? Have custom fields?
Did task object and the event object have custom fields? Did task object and the event object have custom fields? Answer is no. Answer is no. No. This is the first question. Second, अभी इसके आगे और है. Second, I could ask you in a way like how to create the custom fields inside the task object and the event object. If I want to create a custom field, I mean the task object, these all are the standard fields. Event object, these all are the standard fields. See, every object, inside every object, we have standard fields and custom fields. You know, we have seen this. अभी अपन काफी आगे आ चुके हैं. So probably this could not be, you know, ये discussion का part नहीं होना चाहिए. Okay, how to create the custom fields. If yes, objects do have standard fields, objects do have custom fields, every object. Like account, inside account, so many are the standard fields. There are few custom fields also. Inside the position, there are few of the standard fields like ID, name, created by, last modified by, whatever, owner. Then we created few of the custom fields. So every object have two kinds of the fields, standard fields and the custom fields. But inside the task object, event object, there is no custom fields by default. There is no custom fields. Okay. So if I ask you this as a question, did we have any custom field inside the task object or event object? The answer is no. No, Salesforce by default does not provide you any custom field inside the task and event object. Both of these object doesn't have, by default, they doesn't have any custom field. But that doesn't mean we cannot create it. Yes, we can create it. How you can create it? That is the second question. So if you want to create any of the custom field, if you want to create any of the custom field, we should go to this activity custom field. No, we should go to the activity custom field and we should create a new custom field, whatever the kind of field, with whatever the data type you want, you know, with that you can create the field. The same way you created the field inside and give the label, give the length, whatever. So this is the same way you create the field inside any other object. Yes, you can also create the field inside the task and the event object. That to be, you have a link called as activity custom field. And remember, whatever the field you created over here, whatever the field you created with this link, this is applicable to activity. Means if you create the field over here, it's going to be created in both activity. If you create any field, you know, let me show you that. If I create any field over here, you know, if I create any new field, let me show you that. If I create any new field, you know, see, nobody actually bothers to teach you that. इतना अंदर तक कोई नहीं पढ़ा था. Let me. ठीक है, मैं बता रहा हूँ ताकि कल चल के आप 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस भी पुट अप करो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. Activity custom field with some default things. Let's go ahead. I'm creating this on activity. I am not creating this on event, not on the task. Remember, मैं कहाँ create कर activity, event or task is the feature of activity. They belongs to activity. I am creating a custom field on which I'm creating it on the activity. I am creating this field on the activity. Okay. Now, see. Yeah, here is the answer. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है. Whenever I create, जैसे मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा, does event and the task have any custom field? Answer is no. By default, event object and the task object does not have any Salesforce provided custom field. No. Jesse, if you go to the account, you know, if you go to the account, let me show you that. If I go to the account, you know, if I go to the account, let me see the objects, few fields. So inside the account object fields, few of them, I mean, so many are, not few, so many are the standard fields. See, these all are the standard fields. And few are the custom fields of the account. So account object do have some custom fields. Now this is the same. This is what you have not created. Na? These are Salesforce provided custom fields. ये fields पहले से मौजूद थी यहाँ पे when we created this org, है ना? So when we created this org, these fields were actually being present. So these are something called as Salesforce provided custom fields. I can also create this. Yes, I have this new provision. देखो new button है यहाँ पे. Yes, we can also create, but these fields were already present inside my org, right? Now same is going to be repeated when you actually, you know, when you try to save it with the contact, lead, and opportunity. You do inside the objects, we do have some of the standard and some of the Salesforce created custom. But then if I come to, you know, if I come to task and object,
These two objects doesn't have any Salesforce created custom field. These two objects only have standard field. Actually मेरा discussion who ID what ID है, let me tell you that. ठीक है, मेरा discussion who ID और what ID है. मैं चाहूँ तो यहाँ तक restrict कर सकता हूँ, लेकिन नहीं. I just don't want to forget. मैं मतलब छुपाता नहीं कुछ चीज, ये मेरी आदत है. बात निकल गई तो उसको पूरा करूंगा. ठीक है, एक्चुअली आपका डिस्कशन अभी ये है who ID what ID. बात तो मुझे ये करनी चाहिए, लेकिन मैं इसके पहले कुछ और पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, बाद में मैं इस मुद्दे पर आता हूँ. तो देखिए, टास्क ऑब्जेक्ट और इवेंट ऑब्जेक्ट ये दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसमें सेल्सफोर्स की तरफ से कोई भी कस्टम फील्ड आपको दिया नहीं गया है. These two object doesn't have any Salesforce provided custom field. तो क्या इसका मतलब ये होता है कि हम कोई फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते? बिकॉज यहाँ हमारे पास कोई सेक्शन नहीं है. देखिए, यहाँ ऐसा कोई सेक्शन नहीं है. मतलब देखा जाए तो अगर किसी ने सिर्फ इतना पढ़ा होगा तो यहाँ पर एक सेक्शन हो जिसमें लिखा हुआ हो टास्क कस्टम फील्ड, इवेंट कस्टम फील्ड, और यहाँ एक बटन हो न्यू करके कि जिसको आपने प्रेस किया तो आप कुछ कस्टम फील्ड क्रिएट कर सके. तो ऑब्वियसली यहाँ ऐसा कोई इंटरफेस तो है नहीं. तो अगर देखा जाए तो इसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि नहीं, वी कैन नॉट क्रिएट इट. लेकिन आंसर है यस, वी कैन. हाँ, ऑल्दो ये बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे. ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट नहीं है, बट दैट डजंट मीन्स कि यू कैन नॉट क्रिएट द कस्टम फील्ड्स इनसाइड द टास्क एंड इवेंट. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो फिर सेकंड क्वेश्चन अब सीरीज में बनता है, वो ये बनता है, can we create any custom field inside the task object and event object? The answer is yes, we can do that. Yes, we can do that. How we can do that? Go to the activity section inside the build menu. Please write it down. I hope you guys are writing all these questions. ठीक है, ये देखो मैं इतनी डिटेल से चीजें बता रहा हूँ आपको. ठीक है, इतना कोई नहीं बताता, लेट मी टेल यू दैट. और ये उडामी, और अगर आप ऐसा यूट्यूब से देखें, इतनी बातें कहीं से नहीं पता चलती. ये तभी पता चलती जब लिटरली किसी ने काम किया है इन चीजों पे, और वो अपने एक्सपीरियंस से उसको पता चला है कि टास्क ऑब्जेक्ट इवेंट ऑब्जेक्ट में कस्टम फील्ड अगर क्रिएट करनी है तो किस तरह से जाना, तो ही वो शेयर कर सकता है, अदरवाइज नहीं. ठीक है, सो प्लीज जो चीज मिल रही है उसका उसकी कदर करो और लिखो. तो जब हमें व्हेन वी वांट टू क्रिएट एनी कस्टम फील्ड इनसाइड द टास्क और रादर द इवेंट, go to the setup build. Inside the activities, you have one link called as activity custom field. Activity custom field. So I have this option, but I have this option to create custom field on what? Activity. और जैसे ही मैं activity पे कोई custom field create करता हूँ, by default that is going to be, by default that is going to be created on both event में और task में. दोनों में create होता है. By default it is going to be created on both इवेंट और टास्क. क्रिएट तो दोनों पे होगा, क्रिएट तो दोनों पे होगा, क्रिएट तो दोनों पे होगा. इफ यू वांट टू हाइड दैट फील्ड, नाउ इफ आई टेल यू कैन वी क्रिएट जस्ट इट ऑन द इवेंट? आंसर है नो. कैन वी जस्ट क्रिएट ऑन द टास्क? आंसर है नो. नहीं नहीं, हम एक्टिविटी पे कस्टम फील्ड क्रिएट कर रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग द फील्ड ऑन द एक्टिविटी. तो जब आप एक्टिविटी पे कुछ काम कर रहे हो, इट इज गोइंग टू अफेक्टेड ऑन द इवेंट और टास्क, दोनों पे आएगा वो चीज. ठीक है, तो यू आर क्रिएटिंग वन कस्टम फील्ड. आप एक कस्टम फील्ड क्रिएट कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हैं? एक्टिविटी. So when you are creating this on activity is going to be created inside event and task. तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखिए मैं ये चाहता हूं that field what you are creating right now, that field what you are creating right now should be visible only on task. Event पे नहीं दिखना चाहिए. Uncheck this. Just uncheck this. तो अब मुझे कहाँ नजर आएगी? टास्क में. या मैं इसका वाइस वर्सा आपसे कहता हूँ. इफ आई टोल्ड यू कि यार देखो जो फील्ड आप क्रिएट कर रहे हो ना, मुझे समझ गया, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग दैट ऑन कस्टम. एक्टिविटी पे क्रिएट करो तो दोनों में क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, बट आई वांट कि मुझे ना वो इवेंट पे दिखना चाहिए, टास्क पे नहीं दिखना चाहिए. कैसे? ऐसे. जहां दिखाना चाहते हो उसको क्लिक करो, और जिसमें नहीं दिखाना चाहते हो नहीं क्लिक करो. पर चलो हमने गलती से दोनों पे क्लिक कर दिया और सेव कर. हम इतनी जल्दबाजी में थे कि हमने ये चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया. But when we come back, when we come back to here, so actually we created one field inside the task and event. We created one field. Let me show you that. If I go to the opportunity, 006 is the object ID. Let me type it 00T. Let's see what happens. Okay, 0T/O. Let me delete this /O. 00T. See what happens. So I am actually landed on this. I'm actually landed on this.
inside the task outlined it. Let me have this. Go to the new task. This is one way. Another way you can go it with the home page also. Go with the home. Just now I created one field here. I created this field. See, activity custom field. So I can see this is visible over here. मैं भूल गया. I just मैं वो भूल गया. मैंने दोनों पे चेक कर लिया अपने जल्दबाजी की वजह से. So I can see that field on the event. Even I can see that field on the home. है ना, event में देखना है, task में तो दिख रहा है मुझे. This is what I have created. और ये मुझे यहाँ भी visible है. Let me show you with the event. If you want to see the event, you need to go to the calendar section. Activity custom field यहाँ पर भी नजर आ रहा है. दोनों जगह पे नजर आ रहा है. Now अब कैसे hide करना? So you need to go with the page layout customization. So with the help of page layout customization, now you need to hide it. ठीक है, अगर ये गलती कर दिया तो फिर यहाँ से हाइड करो. अदरवाइज ड्यूरिंग द क्रिएशन यू कैन डिसाइड कि उसे कहाँ पे दिखाना चाहिए और कहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए. ठीक है, कहाँ पे दिखाना, कहाँ पे नहीं दिखाना. सो इफ आई सिलेक्ट टास्क एंड आई सेव इट, if I select task and I save it, so on the event it's not going to visible. No, save it. What is happening? Probably something I have missing. So anyway, but this is the way. This is the way. You can hide it from it. तो ये चीज थोड़ा सा जान दो कि whenever we create something, whenever we create a new custom object, it is actually going to be get visible on activity पे create होता है. That means it's going to be visible in the board. तो जहां से हटाना है तो यहाँ से किया जाता है. और अगर यहाँ से कभी भूल जाते हो और वो दोनों पे दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है, इधर पे भी दिखाई दे रहा है, so actually we need to hide it with the help of page layout customization. ठीक है, तो ये तरीका है टास्क ऑब्जेक्ट और इवेंट ऑब्जेक्ट पे नई फील्ड्स क्रिएट करने का. Now let me go back to the discussion what we were discussing. So let's go to the setup menu once again and go to the customize inside the activity. Let me show you the fields of the task. Let me show you the fields of the events. So we have these all fields of the task object. So inside the task object, you see there's a field called as whoid and whatid. There's a field called as who and what. Inside what? Inside task. Inside task, I can see there are two fields. Who is actually called as whoid, what is called as whatid. If I evaluate the fields of the events, if I evaluate the fields of the event, so who and what, यहाँ पर भी है. Now can I ask you one thing over? I just created one field, one custom field I created. यहाँ पे उसका नाम क्यों नहीं नजर आ रहा यार? कोई बता सकता है क्या? इवेंट में भी या टास्क में भी वो जो हमने अभी क्रिएट किया वो यहाँ पे नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? टास्क में भी नजर नहीं आ रहा है, इवेंट्स में, बट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इट. व्हाई यहाँ पे लिस्ट आउट क्यों नहीं हो रहा है? वन कॉमन सेंस क्वेश्चन, क्यों नहीं हो रहा है? यस, एनी गेसिंग्स? क्यों नहीं हो रहा है? सर ये स्टैंडर्ड फील्ड के लिए सिर्फ इसलिए. नहीं, वो इसलिए नहीं डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि वो टास्क ऑब्जेक्ट और इवेंट ऑब्जेक्ट का फील्ड ही नहीं है, वो फील्ड है एक्टिविटी का. आपने जो क्रिएट किया है वो किसका है? वो कहाँ पर क्रिएट किया? क्या आपने टास्क में क्रिएट किया है? क्या आपने इवेंट में क्रिएट किया है? नहीं, आपने कहाँ क्रिएट किया है? एक्टिविटी पे. एक्टिविटी इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो अलग बात है कि एक्टिविटीज रिलेटेड टू टास्क एंड फील्ड्स. तो एक्टिविटी की फील्ड्स यहाँ पे नजर आएंगी, बट आपने जो फील्ड क्रिएट किया है वो टास्क पे नहीं क्रिएट किया, आपने इवेंट पे नहीं किया. एक्चुअली ये क्रिएटेड ऑन द एक्टिविटी, इसलिए वो यहाँ पे नहीं. ठीक है, चलिए अदरवाइज एनीवेज या श्वेता इज राइट. सो हमारे डिस्कशन पे वापस आते हैं. बार बार मैं डेविएट हो रहा हूँ बट ये वापस आके ये डिस्कशन पे आ रहा है. देखिए, inside the task object, inside the event object, there's a field called as whoid and whatid. whoid and whatid. ठीक है, whoid and whatid. अब दोनों फील्ड क्या है? दिस इज व्हाट लुकअप. who भी लुकअप है एंड दिस इज आल्सो लुकअप. ठीक है, who भी लुकअप है और ये भी लुकअप है. अगर मैं who पे ऑब्जर्व करूं तो मुझे कॉन्टेक्ट और लीड के नाम नजर आ रहे हैं. ठीक है, कहाँ पे? टास्क में. मैं इवेंट पे चलता हूँ, इवेंट पे जाके अगर मैं हु को ऑब्जर्व करता हूँ, अगेन आई कैन सी द कॉन्टैक्ट एंड लीड. ठीक है, कॉन्टैक्ट एंड लीड, यूजर का नाम नहीं है बट यूजर होता है. कॉन्टैक्ट एंड लीड. अगर मैं व्हाट पे जाता हूँ तो व्हाट का लुकअप किसके साथ है? कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्डर, कैंपेन्स, अकाउंट, अपॉर्चुनिटी. तब सारी ऑब्जेक्ट्स नजर आ रही है, सारी, यहाँ तक कि हायरिंग मैनेजर, कैंडिडेट, पोजीशन, कस्टमर, सैंपल, बुक ऑथर, बुक ऑथर. इसका मतलब कुछ तो भी अगर आपको पता चल रहा हो इसको देख के, अगर नहीं पता चल रहा है तो मैं सिंप्लीफाई करता चला जाऊंगा, एक एक स्टेप सिंप्लीफाई करूंगा. अभी मुझे सिर्फ इतना ये नजर आ रहा है कि हु आईडी इज अ रिलेशनशिप ऑफ इवेंट ऑब्जेक्ट या टास्क ऑब्जेक्ट विथ कॉन्टैक्ट एंड लीड.
और what ID is a relationship field of all these object, every standard whatever is related and every custom whatever is related. ठीक है, यहाँ से नहीं समझा, मुझे कंफर्म पता है यहाँ से नहीं समझा आप लोग, कोई बात, कोई बात, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो स्कीमा बिल्डर पे चलता हूँ, कुछ और दिखाता हूँ। यहाँ से भी नहीं समझेगा कोई बात नहीं, कई जगहों से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। व्हेन आई सी टू दी कैंडिडेट, कैंडिडेट का लिंक मेरे को व्हाट पे नजर आ रहा है, कैंडिडेट का लिंक मेरे को व्हाट पे नजर आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैंडिडेट का लिंक कहाँ नजर आ रहा है मेरे को, व्हाट। अच्छा, अब मैं कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। अकाउंट अगर मैं लाता हूँ, अकाउंट भी लिंक्ड है, ये तो हम जानते ही हैं। अकाउंट भी कहाँ नजर आ रहा है, सी अकाउंट भी व्हाट पे नजर आ रहा है। ये जो एरो है ना, इसको ऑब्जर्व करो आप, ये एरो कहाँ नजर आ रहा है, व्हाट पे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। लेट मी ट्राई दिस विद द कॉन्टैक्ट, ठीक है, लेट मी ट्राई दिस विद द कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट कहाँ नजर आ रहा है, कॉन्टैक्ट एक्चुअली नीचे थोड़ा सा, यानी हु पे नजर आ रहा है। ओके, कॉन्टैक्ट हु पे नजर आ रहा है, ठीक है। लेट मी ट्राई दिस विद लीड, लीड देखते हैं, लीड के साथ लीड भी कहाँ नजर आ रहा है, एकदम से देखो आप, हु पे नजर आ रहा है, व्हाट पे नहीं, हु पे नजर आ रहा है। यूजर ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर लिस्ट आउट है तो मैं यूजर से भी दिखाने की कोशिश करूँ। यूजर ऑब्जेक्ट, यूजर ऑब्जेक्ट भी कहाँ पे नजर आ रहा है आपको। अच्छा, यूजर ऑब्जेक्ट चलो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ओनर के साथ दिख रहा है, ठीक है, लेकिन यूजर भी हु आईडी पे आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसके अलावा अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कस्टमर को क्लिक करता हूँ तो व्हाट पे नजर आता है, ठीक है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए व्हाट पे आता है। इफ आई क्लिक दी अपॉर्चुनिटीज वगैरह, अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ, कैंपेन्स पे करता हूँ, तो भी ये व्हाट पे आता है। तो अगर यहाँ से भी नहीं समझाओ, ठीक है, अगर यहाँ से भी नहीं समझाओ तो मैं तीसरा तरीका है मेरे पास। चलो अब फाइनल डिस्कशन टू अंडरस्टैंड whoid and whatid. So we have this object. We have the object called as task object and the event object. We have this object, the task object and the event. It do have some fields, you know. It do have some fields, okay. Or rather, if I have any diagram, डायग्राम है क्या मेरे पास, में देख ले, थोड़ी सी वक्त बच जाएगा मेरा। Let me see whether I can explain it. मैं एक्सप्लेन तो कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, try to explain with this. Let me try to explain you with this, ठीक है। See, we have so many objects. We have so many objects like account, campaign, case, hiring manager, position. बहुत सारी objects हैं हमारी। Moreover, we have understood that these objects are related to task object and the event object, ठीक है। We do have lead object, contact object, and the user object. We do have these object also, lead, contact, and the user. But also we have so many objects: account, campaign, cases, opportunity, so many objects. And we recently we came to know that these objects are related to task object. They are also related to event object. Even lead and contact user, they are also related to task and event. Now let me revise this. Let me ask you one question over here. Now out of these two objects, agar if I ask you about account and task, yeah, event. Now who is parent? Parent is account. Who is child? Task. Event is the child. कैंपेन की केसेस में कैंपेन इज द पेरेंट, दीज आर द चाइल्ड। केसेस के केस में केस इज द पेरेंट, टास्क एंड इवेंट आर द चाइल्ड। हायरिंग मैनेजर अलोंग विद द टास्क इवेंट की अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, सो योर हायरिंग मैनेजर इज द पेरेंट and your task object event object is the child. Position is the parent, task object event object is the child. जब भी हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, तो वो कैसे क्रिएट होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई अमंग दीज टू ऑब्जेक्ट, भाई पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है। तो हमें पता चला कि योर टास्क इवेंट इज द चाइल्ड, और बाकी फिर इधर में जो भी है, अगर अकाउंट बोल रहे हो तो अकाउंट पेरेंट हुआ, लीड बोल रहे हैं तो लीड पेरेंट हुआ, कैंपेन बोल रहे हैं तो कैंपेन पेरेंट हुआ, कॉन्टैक्ट बोल रहे हैं कॉन्टैक्ट पेरेंट हुआ। बट एवरी टाइम वी केम टू नो दैट टास्क ऑब्जेक्ट और इवेंट ऑब्जेक्ट ये आपके चाइल्ड ऑब्जेक्ट,
तो दिस वाज स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि इनसाइड द चाइल्ड ऑब्जेक्ट, create a relationship field, create a relationship field, create a reference field. Now that reference field inside the task and event, there are two reference fields. There are two reference fields, whoid, whatid. ये दोनों ही reference field है। ये भी पेरेंट रिकॉर्ड की आईडी स्टोर करता है, ये भी पेरेंट रिकॉर्ड की आईडी स्टोर करता है। ठीक है, दोनों दोनों। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल आई हैव वन अकाउंट रिकॉर्ड, आई हैव वन अकाउंट रिकॉर्ड प्रवीण के नाम से। this is the these are some, these are some details of that record. I have one account record with this name. ठीक है, I have this account record with this name. ठीक है, तो what is the ID of this? What is the ID? What is the ID of this account record? ID is, for example, AQ10. This is the ID. This is the ID of this record. So if it is account record, if it is an account record, how drag and drop this? Yeah, how we drag and drop this? My God. Anyway, so account record है ये, and we know that account is related to task, related to event. Both of them have whoid, whatid. ठीक है, तो if this is related, if these two are related to each other, 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 these two are also related to each other. अगर ये सब रिलेटेड है आपस में, तो यहाँ जो रिलेशनशिप फील्ड है, एक तो whoid, एक तो whatid, उसमें आपके पेरेंट रिकॉर्ड का आईडी स्टोर होगा, जरूर होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर योर ऑब्जेक्ट इज लीड, कॉन्टैक्ट और यूजर, अगर इफ योर ऑब्जेक्ट इज लीड, कॉन्टैक्ट और यूजर, तो उसकी आईडी जाती है who में। इन दैट केस योर जो भी रिकॉर्ड आईडी है, दैट केस द रिकॉर्ड आईडी, मैं समझा रहा हूँ, डोंट वरी, हर एक चीज समझ में आएगी। ये कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना लगे, ये कंफर्म है, हमारे दिमाग के बाहर नहीं। ठीक है, तो इफ योर ऑब्जेक्ट इज लीड ऑब्जेक्ट, योर ऑब्जेक्ट इज कॉन्टैक्ट और या फिर यूजर, तो इसकी रिकॉर्ड आईडी जाके स्टोर होती है हु में, हु आईडी में। और इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो उसकी आईडी स्टोर होती है व्हाट आईडी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल आई क्रिएटेड अ लीड रिकॉर्ड, मैंने एक लीड ऑब्जेक्ट में एक रिकॉर्ड क्रिएट, जिसका ये सब डिटेल्स है। ठीक है, अब इसकी ऑब्जेक्ट आईडी क्या है? 00Q12। ये लीड ऑब्जेक्ट है और ये रिलेटेड है इसके साथ में। तो ये जो रिकॉर्डेड आईडी है 0012, इट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड, कहाँ स्टोर होगी? हु आईडी। सो लेट्स कम टू द हु आईडी। ठीक है, हु आईडी विल हैव वन रिकॉर्ड कॉल्ड एज 00Q12। ठीक है, 00Q12, ये मेरा लीड रिकॉर्ड है। लेट मी स्टोर वन मोर रिकॉर्ड ओवर हियर। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल दूसरा, ये कॉन्टैक्ट है, मान के चल, दिस वन इज अ कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, कोई दूसरा कलर ले लेता है, दिस वन इज अ कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड। ठीक है, 003 मे बी 56 लाइक दिस। ठीक है, कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट वन, CON, कॉन्टैक्ट नंबर 1। ठीक है, रिकॉर्ड इट्स सम XY जो भी है। ठीक है, आई क्रिएटेड दिस एज अ कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड। कॉन्टैक्ट है तो क्या होगा? सेकेंड पॉसिबिलिटी, ये मेरा, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज माई यूजर रिकॉर्ड, यूजर है 00। ठीक है, यूजर इज 00, 500 नहीं, 500, मैं भूल गया थोड़ा सा, 0U नहीं है, whatever 00X56। ठीक है, दिस वन इज माई यूजर नंबर 1। ठीक है, विथ फ्यू डिटेल्स। ओके, तो पहला जो एग्जांपल है मेरा, अब ये एक ही टेबल पे समझा रहा हूँ मैं आपको, बट इसका मतलब ये नहीं कि एक ही टेबल है, आप अलग अलग समझो इसको कि ये एक लीड, अगर मैं लीड की बात कर रहा हूँ, सो लेट्स अज्यूम दिस इज अ लीड टेबल। कॉन्टैक्ट की बात कर रहा हूँ तो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट। यूजर बोल रहा हूँ तो दिस अज्यूम दिस इज यूजर ऑब्जेक्ट। तो लीड रिकॉर्ड है, तो लीड का आईडी कहाँ स्टोर होगा? हु में। कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड है, कॉन्टैक्ट का भी आईडी कहाँ स्टोर होगा? हु में। कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड है 00356। ठीक है, तो ये भी कहाँ स्टोर होगा? ये भी हु में ही होगा, ये भी कहाँ स्टोर होगा? हु में ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर यूजर रिकॉर्ड है, इफ इट इज अ यूजर रिकॉर्ड, इफ इट इज अ यूजर रिकॉर्ड, यूजर रिकॉर्ड है तो उसका भी आईडी
x65, ये भी कहाँ स्टोर होगा, हु में। तो हु आईडी विल टिपिकली कंटेन्स, हु आईडी अब क्या है देखो, हु आईडी विल टिपिकली कंटेन्स रिकॉर्ड आईडीज, हु आईडी में भी रिकॉर्ड आईडी रहेगा, व्हाट आईडी में भी रिकॉर्ड आईडी, व्हाट आईडी पे आता हूं मैं, हु आईडी में भी रिकॉर्ड आईडीज रहेंगे, पेरेंट के रिकॉर्ड आईडीज, व्हाट आईडी में भी पेरेंट के रिकॉर्ड आईडी ही रहेंगे, बिकॉज दोनों के दोनों रेफरेंस फील्ड है, दोनों के दोनों रिलेशनशिप की फील्ड है। तो हु आईडी में भी पेरेंट के ही रिकॉर्ड आईडी रहेंगे, व्हाट आईडी में भी पेरेंट के ही रिकॉर्ड आईडी रहेंगे। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट है लीड, तो उसकी रिकॉर्ड आईडी कहाँ स्टोर होगी, हु में। अगर ऑब्जेक्ट है कॉन्टैक्ट, तो उसका भी रिकॉर्ड आईडी कहाँ स्टोर होगा, हु आईडी में। अगर ऑब्जेक्ट है यूजर, तो भी उसका रिकॉर्ड आईडी कहाँ स्टोर होगा, हु आईडी में। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट ऑब्जेक्ट, आपने अकाउंट में एक रिकॉर्ड क्रिएट किया AQ134, तो इसका जो ऑब्जेक्ट आईडी है AQ134, ये जाके वॉट में स्टोर होगा, हु में नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम क्रिएटिंग दिस फॉर द हायरिंग मैनेजर, हायरिंग मैनेजर के लिए कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हायरिंग मैनेजर में भी 00Q लाइक दिस, 00 सॉरी R एंड देन 345, ऐसा कुछ। तो हायरिंग मैनेजर नेम, गिव एनी सुटेबल नेम, गिव एनी सुटेबल नेम, लाइक हायरिंग मैनेजर नेम इज असित, एंड दिस आर सम मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद में कुछ ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। ठीक है, एंड देन लोकेशन, ऐसा कुछ। तो रिकॉर्ड है, कुछ भी स्टोर कर रहा हूँ। तो हायरिंग मैनेजर रिकॉर्ड है, उसका आईडी क्या है, 00R, ये वाला आईडी। ठीक है, ये भी अब हायरिंग मैनेजर भी तो रिलेटेड टास्क इवेंट के साथ, लेकिन फिर ये आईडी कहाँ स्टोर होगा, दिस इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इनसाइड दी व्हाट आईडी, यहाँ पे स्टोर फॉर दिस इज वेल। तो ये कैसा है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट इतना है कि हु आईडी और व्हाट आईडी क्या है। सबसे पहले व्हाट इज द हु आईडी, व्हाट इज द व्हाट आईडी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज हु आईडी, व्हाट इज व्हाट आईडी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द क्वेश्चन। सो लेट्स राइट डाउन द आंसर फॉर दिस। सबसे पहला जो इसका आंसर है वो ये है कि द हु आईडी एंड द व्हाट आईडी, these are the two standard fields. First of all, what is it? These are the two standard fields. whoid and whatid, these are the two standard fields inside what? Inside task object and the event object. whoid and whatid, these are the two standard fields inside this task object and the event object. These are the two standard fields inside the task object and event object. First of all, पहले तो बात ये होगी। सेकेंड, अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं। बोथ हु आईडी एंड व्हाट आईडी आर द रेफरेंस फील्ड। ठीक है, बोथ हु आईडी एंड व्हाट आईडी आर व्हाट, दे आर द रेफरेंस फील्ड, दैट मीन्स दे आर द रिलेशनशिप फील्ड, because we know that task object event object is the child object। हर बार in every relationship जहां जहां पर भी एक्टिविटी फीचर है और वहां वहां पर टास्क और इवेंट ऑब्जेक्ट रिलेटेड है किसी और ऑब्जेक्ट के साथ, तो हर बार हमने ये पाया कि योर टास्क एंड इवेंट इज व्हाट, दे आर द चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो ये रिलेशनशिप फील्ड कहाँ क्रिएट होती है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट में। तो वो रिलेशनशिप फील्ड का नाम क्या है, दो रिलेशनशिप फील्ड है, एक है हु आईडी और दूसरा है व्हाट आईडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अपन पॉइंट वाइज जा रहे हैं, चलो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि भाई हु आईडी एंड व्हाट आईडी, दीज आर द टू स्टैंडर्ड फील्ड्स इनसाइड व्हाट, इनसाइड टास्क ऑब्जेक्ट एंड इवेंट ऑब्जेक्ट, दोनों में होती है। नाउ सेकंड इज दैट these two are the relationship field, these two are the reference field, ये दोनों ही आपके relationship field है, ये दोनों ही आपके what, these two are what, these are relationship field, these are the reference field। This could be a point number 2। Point number 3, they are used to store what, they are used to store the record IDs, parent record ID, they are used to store the parent record IDs, both of them, who ID और what ID दोनों में क्या रहता है, they are used to store the parent record ID। ठीक है, अब अलग क्या है, अब यहां तक तो सब बातें कॉमन चली कि दोनों स्टैंडर्ड फील्ड है टास्क में और इवेंट में, दोनों के दोनों रेफरेंस फील्ड है, रिलेशनशिप फील्ड है, ये भी कॉमन था। दोनों के दोनों में क्या रहता है, दोनों के दोनों में क्या रहता है, दोनों के दोनों में बेसिकली रेफरेंस फील्ड स्टोर होती है, पेरेंट की जो पेरेंट रिकॉर्ड जो है, पेरेंट रिकॉर्ड की आईडी स्टोर होती है। जैसे अभी राम कुमार, तो अभी राम कुमार की आईडी क्या है, ये आईडी ये स्टोर होगी यहाँ पे, बिकॉज वो लीड है। ये तो ये सब रिकॉर्ड आईडीज हैं, ये भी रिकॉर्ड आईडी, ये भी रिकॉर्ड आईडी, पेरेंट का रिकॉर्ड आईडी यहाँ पे स्टोर होता है। यहाँ तक सब कुछ कॉमन चला। अब डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? नाउ डिफरेंस इज दैट इफ योर ऑब्जेक्ट इज लीड, कॉन्टैक्ट एंड यूजर, फॉर दीज थ्री ऑब्जेक्ट्स ओनली, for these three objects only, if your object is lead, contact and user, if your object is lead, contact and user,
The parent record ID or record ID is going to be stored inside whoid. If your object is lead, contact, and user, if your object is lead, contact, and user, the record ID is going to be stored inside whoid. The record ID is going to be stored inside. If your object is lead, contact, and user, the record ID is going to be stored inside whoid. Inside whoid. For every other object, for every other standard and the custom object, for every other, apart from lead, contact, and user, apart from lead, contact, and user, for any other standard, any other custom object, the record ID is going to be stored inside whatid. Inside whatid. ठीक है? तो ये है your whoid and whatid. This is what your whoid and whatid. तो point form में जाइए. Point number 1 कि both of them are the standard fields inside what task and event object. Both of them are used to store the parent record IDs. Both of them are the reference field, relationship field. Now the final point and the most important point. If your object is lead object, contact object, and the user object, for these three objects, for only these three objects, the record IDs are going to be stored inside whoid. Apart from lead, contact, and user, any other standard, any other custom object record ID is going to be stored inside what? whatid. Inside whatid. ये है वो चीज, ठीक है? इसको, और ये बहुत बार पूछते हैं. Most repeated interview question है ये, what is whoid and what is whatid. Now prepare your own answer in your terms. आप अपने आंसर अपने तरीके से बनाइए, and I'm going to share this diagram also. Let me show you. Let me relate this concept with another thing. एक बार इसको मैं एक और जगह से आपको समझाना पाऊंगा. One last attempt कि मैं आपको समझा पाऊँ. Probably समझ में आ जाना चाहिए, पर ठीक है, एक अटेम्प्ट और करता हूँ, एक और जगह से समझाने. बहुत तरीके मेरे पास बताने. We have created so many email templates, right? Contact पे मैंने कुछ भी क्रिएट नहीं करवाया आपसे, ठीक है? Contact पे मैंने आपसे कुछ भी क्रिएट नहीं करवाया. लीड पे आई थिंक वी हैव क्रिएटेड. ओके फाइन, लीड पे हमने क्रिएट किया है. चलो लेट्स गो बैक टू दिस. लीड पे वी क्रिएटेड दिस न्यू लीड क्रिएशन नोटिफिकेशन, ठीक है? लीड पे हमने किया तो है, बट आई मीन इफ यू रिमेंबर और नो, बट आई डोंट नो. Actually, we created this, but we have tested it from the workflows. Workflow में मैंने ये पढ़ाया. I remember. If I go back on the workflows, मैंने workflow पे आपको ये बताया है, ठीक है? I'll show you one thing now. Email template, ये जो example मैंने लिया है ना, configure a workflow to test the lead, ये मैंने workflow के दौरान आपको बताया है. Email templates पढ़ाते वक्त नहीं बताया. I know. Email templates पढ़ाते वक्त नहीं बताया. जब मैं आपको email templates बता रहा था, HTML programming, without HTML, with letterhead, without letterhead, that time I don't have told you. उस वक्त नहीं बताया, ठीक है? क्यों नहीं बताया? रीजन क्या था? लीड ऑब्जेक्ट का मैंने बताया है, कॉन्ट्रैक्ट का नहीं बताया है. लीड पे बताया. चलो लीड से मैं जस्टिफाई करता हूँ कि मैंने उस वक्त क्यों नहीं बताया. चलो हायरिंग मैनेजर की बात करता हूँ कि हायरिंग मैनेजर पे हमने एक ये पोजीशन पे किया है, ऑब्जेक्ट पोजीशन पे किया है. चलो पोजीशन पे हमने एक ईमेल टेम्पलेट क्रिएट किया है, ठीक है? क्या नाम है इसका? पोजीशन वाला. चलो मैं पूछता हूँ, कुछ चीजें आपसे पूछता हूँ. लेट मी गो बैक. पोजीशन पे हमने एक ईमेल टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? आइए चलिए, न्यू पोजीशन असाइनमेंट रूल नोटिफिकेशन. चलो बताओ जरा सा, इसको टेस्ट कैसे करेंगे? कैसे टेस्ट करते हैं इसको? मैनुअली, वर्कफ्लो नहीं, मैनुअली कैसे टेस्ट करते हैं? हाँ बताइए बताइए बताइए, कैसे टेस्ट करते हैं इसको मैनुअली? कैसे टेस्ट एंड वेरीफाई. बिल्कुल सही. चलो ये बटन दबाया. अब बताओ जरा सा, कहाँ पे चेक करूँ? अभी पोजीशन ऑब्जेक्ट है, कहाँ से सिलेक्ट करूँ? ये रिलेटेड टू रिकॉर्ड, यहाँ जाऊँ, ठीक है? यहाँ पे, हाँ यहाँ जाते हैं. कौन सा ऑब्जेक्ट है? पोजीशन ऑब्जेक्ट है. चलो बहुत अच्छी बात है, पोजीशन ऑब्जेक्ट है. पोजीशन ऑब्जेक्ट पे गए और पोजीशन ऑब्जेक्ट का जो भी जिस पे भी जाना है उस पे चले गए, ईमेल सेंड कर दिए, ठीक है? बहुत अच्छी बात. चलो मतलब आपको याद है, ठीक है? बहुत अच्छी बात, ठीक है? पोजीशन ऑब्जेक्ट था, कर लिया. लीड ऑब्जेक्ट का, ठीक है? लीड ऑब्जेक्ट, इसको टेस्ट करना है मुझे, मैनुअली टेस्ट करना है. ये इसको सेंड टेस्ट, बहुत अच्छी बात है. चलो यहाँ पर आ गए, लीड ऑब्जेक्ट पे ढूंढ के जाएंगे. चलो भाई लीड ढूंढो, यहाँ पे लीड ढूंढो. आई के बाद में एल आता है, लीगल, लिस्ट, लोकेशन. लीड कहाँ है? लीड कहाँ है?
लीड तो यहाँ है ही नहीं, तो आप बोलोगे सर लीड रिलेटेड ही नहीं है। अच्छा, लीड लीड का कोई रिलेशन ही नहीं है, चलो ठीक है, आपकी भी बात नहीं सही जा रही है। ठीक है भाई, लीड रिलेटेड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 1 मिनट जरा सा कैंपेन हटा देता हूँ, लीड पे चलता हूँ। चलो भाई, लीड रिलेटेड है या नहीं देख लेते हैं। इवेंट ही लीड ऑटो लेआउट। अब जरा इनको देखो और बताओ क्या लीड रिलेटेड है या नहीं है। लीड रिलेटेड है या नहीं है? है। लीड इवेंट और टास्क के साथ रिलेटेड है। अब इवेंट लाया मैंने, टास्क भी ला देता हूँ। चलो यार, टास्क को भी ला लेता हूँ, टास्क को भी ला लेता हूँ। अब बताओ, लीड को मिडल में रखता हूँ, दोनों को आजू बाजू रखता हूँ। बताओ रिलेशनशिप है या नहीं? रिलेशनशिप तो है। जब रिलेशनशिप है तो लीड का नाम यहाँ क्यों नहीं है? लीड का नाम यहाँ पे क्यों नहीं है? लीड का नाम यहाँ पे नहीं है। एल की लिस्ट में अगर मैं आता हूँ तो लीगल एंटिटी, लिस्ट और लोकेशन। अच्छा, सिर्फ लीड की बात नहीं है, सिर्फ लीड की बात नहीं है। चलो ये तो लीड हो गया। ठीक है, 1 मिनट जरा सा, लीड हटा दिया। कॉन्टैक्ट पे चलता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट है ये, कॉन्टैक्ट। देखो कॉन्टैक्ट रिलेटेड है या नहीं, कॉन्टैक्ट रिलेटेड है या नहीं? कॉन्टैक्ट भी रिलेटेड है। ठीक है, कॉन्टैक्ट का भी रिलेशनशिप है इवेंट और टास्क के साथ। ठीक है, कॉन्टैक्ट का नाम है क्या इस लिस्ट में? कैंपेन, कैंडिडेट, केस, कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट, कस्टमर। कॉन्टैक्ट है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? क्यों नहीं है? जबकि रिलेशनशिप तो है, लीड से भी रिलेटेड है, कॉन्टैक्ट से भी रिलेटेड। अगर रिलेटेड नहीं होता, जैसे कि मैंने कल आपको, कल या शायद आज, कब बताया मैंने? कल ही बताया, हाँ कल ही बताया मैंने। तो मैंने दिखाया हायरिंग मैनेजर का वो शायद कि कोई और एक ऑब्जेक्ट का अपन ने वो एक्टिविटी वाला चेकबॉक्स हटा दिए, तो रिलेशनशिप हट गई, तो रिलेशनशिप हट गई, तो वो यहाँ से गायब हो गया। बट आज तो ऐसा नहीं है कुछ भी, आज तो ऐसा नहीं। वो इसलिए नहीं है, वो इसलिए नहीं है, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। ये जो लिस्ट यहाँ दिख रही है ना आपको, ये जो लिस्ट यहाँ पे दिख रही है, ये है वॉट आईडी। वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि वॉट आईडी टेबल में से है, तो वो सारे कहाँ हैं जो हु आईडी के हैं? ये जो लिस्ट यहाँ पर है ना, ये रेफर कर रहा है हु आईडी, ये रेफर कर रहा है हु आईडी। ठीक है, अब देखो भाई, आपको कॉन्टैक्ट चाहिए तो यहाँ नहीं मिलेगा, लीड चाहिए यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा कॉन्टैक्ट, लीड और यूजर, ये है हु आईडी। इसलिए मैंने बोला यूजर भी है। आप कॉन्टैक्ट पे टेस्ट करना चाहते हो, यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट लीजिए, ये है सारे कॉन्टैक्ट्स। आप यहाँ से आप लीड लीजिए, ये है सारी आपकी लीड्स। बराबर है? ठीक है, ये रिसेंट है, इसको अपन कस्टमाइज कर सकते हैं, रिसेंटली व्यूड है, इसको कस्टमाइज। ये डायलॉग लुकअप डायलॉग बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको आता है, इसके पहले मैंने लुकअप डायलॉग बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन सिखाया है, उसके थ्रू यहाँ पे सारी के सारे आप करवा सकते हो, ये रिसेंटली है। तो अगर आपको हु आईडी की लिस्ट चाहिए, वो यहाँ नहीं मिलेगी, ये वॉट आईडी की लिस्ट है, और ये है हु आईडी की लिस्ट। तो हु आईडी में कौन कौन आते हैं? कॉन्टैक्ट, लीड और यूजर। हु आईडी में कौन कौन आते हैं? कॉन्टैक्ट, लीड और यूजर। और वॉट आईडी में कौन कौन आते हैं? फिर बचे हुए सारे, फिर बचे हुए सारे। ठीक है, तो ये है वो बात। तो अच्छा, श्वेता क्या कह रही है कि आपने असाइनमेंट दिया था कॉन्टेक्ट का? अच्छा, मैंने असाइनमेंट दिया था, लेट मी चेक इट आउट। किसी ने ये चीज तो पूछा ही नहीं मुझसे फिर कि सर ये हमको नजर ही नहीं आया। जरा सर रुको, मैंने असाइनमेंट। हेलो, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर आपने दिया था और मैंने करने की कोशिश की थी। तो जैसा अभी आपने बताया ना, एक्चुअली तब मुझे हु आईडी और व्हाट आईडी नहीं पता था, लेकिन हाँ, मैंने ऊपर का जो कहाँ? कॉलम था, जो डायलॉग बॉक्स है, हाँ हाँ, कहाँ पे दिया तो था कुछ वहां से थोड़ा मैंने सा बता सकते हैं क्या? मतलब वर्क फ्लोज में दिया एक था कि सेकेंड, ईमेल मैंने टेम्पलेट में? ईमेल टेम्पलेट में देखिए सर। देखिए देखिए। ईमेल तीन टेम्पलेट पे दिया था सर। अच्छा, हाँ चार देखिए। चार असाइनमेंट दिए थे, तो वहां से मैंने कांटेक्ट चलो यहाँ से ईमेल मतलब टेम्पलेट ऐड स्टार्ट करके होता लिया है, था। और सेटअप और शीट्स, हायरिंग मैनेजर, असाइनमेंट, says configure email template on the candidate on the hiring। अच्छा, HTML पेज, उसके बाद HTML, यस, ये दिया था। तो ये दिया था मैंने। अब देखो मैं खुद भूल गया, बट अगर ये किसी ने भी सॉल्व किया, जैसे श्वेता ने सॉल्व किया, तो उनको पता चला कि कांटेक्ट मिल ही नहीं रहा,
तो चलो मैंने दिया एक्चुअली इसी पर्पस के लिए था कि कोई तो भी ये ढूंढ के निकाले और हमसे कहे कि ये सर ये हमको मिल ही नहीं रहा है। यस सर, मैंने किया था और फिर उसके बाद मैंने सॉल्व करके आपको मेल भी किया था। अच्छा, कैसे किया तब था? तब ये मुझे ऊपर ये से हुआ आइडिया। हाँ वही से, यस सर। आपको यहाँ से नहीं मिला था, यहाँ पे कांटेक्ट दिख गया था तो यहाँ से ले लिया था आप। ठीक है, कोई यस बात सर। नहीं, दैट्स रियली गुड। तो फिर मुझे लीड पे देना चाहिए अगली बैच के लिए। अगली बैच के लिए कुछ नया करके रखते हैं लीड पे। अब देखते हैं अगले वाले कैसे सॉल्व कर। तुम लोगों ने तो सॉल्व कर लिया क्योंकि तुमको नजर आ गया, यहाँ कॉन्टेक्ट नजर आ गया। लीड तो ढूंढते रह जाएंगे लोग, यहाँ पे जाएंगे पूरा सब पूरा सॉल्व कर लेंगे, लीड मिलना ही नहीं है। उनको ये पता ही नहीं रहेगा कि लीड इसके अंदर मिलेगा। तो लीड जो है, कॉन्टैक्ट, लीड और यूजर, दीज बिलोंग टू हु आईडी। हु आईडी में हु कौन, अपन देखो एक और तरीका बताओ कि याद करने का। जैसे हु मतलब अपन किसी को पर्सन को डिनोट करते, हु आर यू। ऐसा अपन किसी किससे सवाल पूछेंगे कि ये तो कोई ना कोई इंसान होगा ना, जिसको हम ऐसा पूछेंगे हु आर यू। ऐसा मेरा ये मेरे दिमाग की उपज है, इसका कोई सेल्सफोर्स से रिलेशन नहीं। मतलब शायद मुझे जब याद करने का आया था तो मैंने इस तरह से अपनी टेक्निक बनाई हो, हु आर यू। तो हु आर यू, तो आई एम अ कॉन्टैक्ट, आई एम अ लीड, आई एम अ यूजर। ये वो तीनों लोग हैं जो एक्चुअल पर्सन होते हैं। बिकॉज अकाउंट नहीं, अकाउंट एक कंपनी हो सकती है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता, वो तो पैसे की बात होती है। कॉन्टैक्ट प्रिसाइसली एक यूजर होता है, लीड एक यूजर होता है, और यूजर तो यूजर ही होता है, और ये सारे इंसान होते हैं। दीज आर व्हाट, दीज ऑल आर द पीपल। इनके लिए अपन बोल सकते हैं यार हु आर यू। तो ये तीन लोग होते हैं। हु में कौन कौन आता है? कॉन्टैक्ट, लीड और यूजर। उसको छोड़ के बाकी सारे व्हाट है। बाकी सारे क्या है? व्हाट है। ये इस तरह से याद करो। और मेरे ख्याल अभी समझ में आ गया होगा सभी। कोई है जिसको नहीं समझा तो बताओ, मैं रिपीट कर देता हूँ। वैसे मैंने कोशिश तो की कि पूरी तरह से आपको समझा पाऊँ, हर जगह से समझा पाऊँ। अगर किसी को नहीं समझा तो बताओ, मैं थोड़ा सा रिपीट करने को तैयार हूँ। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफी जगहों से आपको दिखाया है मैंने कि हु आईडी व्हाट आईडी का कंसेप्ट कहाँ कहाँ से अपन निकाल सकते हैं इसको। तो जैसे कि स्कीमा बिल्डर पे आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट्स, अब देखो वही चीज अगर मैं रिपीट करके अब बताऊं आपको, ठीक है। स्कीमा बिल्डर पर अगर अपन जाए, अभी सेम चीज वही दिखाता हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट हटा दे, सिंप्लिसिटी। तो कॉन्टेक्ट चलो रहने दो। कॉन्टेक्ट कहाँ पर आएगा? अब आप बताओ कॉन्टेक्ट कहाँ पर आएगा? कॉन्टेक्ट आएगा आपका व्हाट आईडी में, सॉरी हु आईडी में कॉन्टेक्ट। तो ये देखिए हु के साथ वो रिलेटेड आईडी है। में था। लीड है तो वो भी यहाँ पर आएगा। यूजर है तो फिर वो यूजर, यूजर यहाँ नहीं दिख रहा है अपने को, यूजर का एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में होता है। लेकिन फिर इसके अलावा कोई दूसरा और देखोगे ना, जैसे केस देखोगे, तो देखो अब ये व्हाट आईडी पे जाता है। तो मेरे ख्याल अब ये आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट देखता हूँ तो शायद देखो ये व्हाट आईडी पे जाता है। लीड लाऊंगा तो यहाँ लीड अगर लेके आता हूँ तो लीड आप देखोगे हु आईडी पे आ जाएगा। देखिए हु आईडी पे आ गया। तो इस तरह से ये चीजें। तो हु में से तीन चीजें होती हैं आपकी, कॉन्टैक्ट, लीड और यूजर। बाकी सारा जो होता है वो व्हाट आईडी पे जाता है। तो इसको अच्छे से याद करो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, बहुत अच्छे से करो इस चीज को। कौन सी बैच है? 10। हम्म, ठीक है। ठीक है, प्रोसेस बिल्डर कल से शुरू करते हैं, स्टार्टेड बाय। हाँ, कल प्रोबेबली क्लास रहेगी आपकी। कल प्रोबेबली रहेगी क्लास, ठीक है। तो मैं, क्योंकि मैं एक और बैच रख रहा हूँ एक्चुअली, तो उसके साइमल्टेनियसली आप लोग को भी रख सकता हूँ मैं। तो मैं अकॉर्डिंगली राहुल को इन्फॉर्म करूंगा। तुम लोग थोड़ा सा ग्रुप ट्रैक करना प्लीज। हाँ, इवनिंग में ही रखूंगा, 5 बजे के बाद ही रखूंगा। हो सकता है थोड़ा सा पहले रख सकता हूँ, मतलब 7:30 ना रखते हुए थोड़ा सा पहले रख सकता हूँ। क्योंकि सैटरडे है, मेरे को ऑफ है वैसे, लेकिन फिर भी क्योंकि बाकी लोग वर्किंग वर्किंग पे रहते हैं, तो 5 के बाद ही रखूंगा प्रोबेबली। लेकिन थोड़ा सा ग्रुप में एक्टिव रहना, देखते रहना अगर कोई मैसेज पोस्ट होते हैं। तो वैसा मैं राहुल को इन्फॉर्म करूंगा कि अकॉर्डिंगली एक को बना ले।